He has shared a really good insights about privacy and its importance of privacy, especially in Pakistan as well. We need to work more and more, but this is a good start what we are doing. So the next we are going to very interesting talk today, guys. It's very close to our heart because especially being very techie guys in that field, you want to understand that the threat actors, advanced threat actors, how they attack, how they work on the attack life cycle and all this one. So let's get started with tales from the trenches. And today we have two presenters in that one. Ahmed Munib Khan, he is a digital forensic and incident response lead at eBricks Private Limited, and we have Sayed Ishaq Bukhari with us as well. He's a security architect. So I will hand over to Ahmed and Munib. Munib and Ahmed, are you ready? Yep. Cool. Please remember you have 40 minutes for your presentation and talk and 5 minutes for question and answers. So before I hand over mic to you, just for our audience, we have really exciting giveaways today as well, guys. Spark your curiosity and listen to what speakers had to say. Post your really interesting questions in the speakers panel in Discord. We will be giving away trainings up to worth of $800 to most curious and good question. So what you will do, throw your questions, what you have from our speakers in Discord channel, and we will pick the best 3 questions and we'll give giveaways in the form of trainings. Also, we are giving away 3 cybersecurity training subscription for females in Pakistan. So if you have done a really good job, you have Pakistani female contributors who have contributed to the community by conducting any good security training, participating in any international workshop as a speaker or a conference, or you would like to jump into cybersecurity and you want to give us a reason why you need support, please email us at info@bsidesislamabad.com and we will give 3 cybersecurity trainings to our female participants as well. So, yep, hand over to Ahmed and Munib, Ahmed and Ishaq now. Thank you very much, Ali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello, everybody, wherever you are. My name is Sayed Ishaq, and today I'm here with my colleague, Ahmed Munib Khan, to share some of the stories from our incident response and digital forensic engagements that we have been carrying out for past 2-3 years. So this is just a combination of what we have learned, and we want to share this with you guys. So yeah, so it's I've been working with eBricks for 5 years, and in various roles. I led a number of large-scale breach responses in the region, in Middle East, in Pakistan, and some in remote capacity, especially when it comes to cloud networks. Right now, I am more passionate about DevSecOps and cloud security, and that's what keeps me busy most of the time. Ahmed, can you please introduce yourself, and then I will carry on. Yeah, sure. Assalamu alaikum, everybody. My name is, as you guys know, Ahmed Munib Khan, and I've been working as a DFIR lead, and it's been 3 years for me working with eBricks, and I like to study adversary tradecraft, and that is what I do in my in my professional job, or you can say day and night. It's just adversary tradecraft all the time. So that's it. It's all. All right, thank you, Ahmed. So there are a couple of things that I want to clarify before we get into this presentation. So we have some goals defined for our presentation. We have some expectations towards ourselves, towards our audience that we want to meet. So basically, this is one event which is really close to our hearts, especially me, and kudos to Mustafa Bhai, Ali Paracha, Ibad, and all of the team that were working in the background to make it happen. So we especially want to keep it focused towards Pakistani audience. So from this point onward, I would be using Urdu and English, a mix of both languages, so I can connect better, especially to young graduates, aspiring security professionals, and also the security and in-house IT staff of various organizations in Pakistan.
We have 4 goals starting this presentation. So we want to showcase some of our work that we have carried out in various capacities. If you were part of the presentation workshop yesterday, you must have witnessed some fabulous work presented by Umair and Arshad, which are my ex-colleague from Abrix, and they are now working in Kaspersky and I think Cisco Talos. So this is one thing which I want to highlight, that there are Pakistani good security professionals working outside Pakistan, doing great work. There are good companies in Pakistan who are doing incredible job, but their work is not being showcased, which I think is pretty important when it comes to creating inspiration among newcomers. So, which basically leads to my second point, which is to inspire local talent into cybersecurity domain. We want to share our learning with new security teams to improve their defenses against APT attacks. We are probably far from ideal state of security when it comes to our local businesses. So we can just play our part and share whatever we know, so to make the defenses better. And also we want to focus, because we have a case study from a financial institution, because we were extensively working for past 2-3 years. Ahmed is still working on it. I'm no longer part of it. To provide forensic security assessment and compromise assessment, incident readiness, and these kind of services to financial industry, fintech, and this particular industry. So there would be focused area. This would be focused area for our presentation today. Okay, so अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. जो हमारा प्रेजेंटेशन फ्लो है उसमें इंट्रोज जैसे कि हमने आपको दे दिए. हमारा ख्याल है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें जो आपको इंस्पायर करें साइड पे आने में, और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं who want to break into security. They probably think Facebook hacking is the only way to get into hacking, or pen testing is the only field, which it is not. And this is what we aim to inspire today. So we have 5 interesting stories from our breach response exercises. One is business email compromise. Other one is crypto mining on AWS instances. There's a case of identity theft that we dealt with, and some extortion attempt by a security researcher, and then Operation Skyjob, which basically which talks more about APT groups and how they operate, and how we were able to conduct a successful defense in one of the financial institutions in Pakistan. So जब हम बात करेंगे स्काइप जॉब की, तो इसमें बेसिकली हम कवर करेंगे APT एक्टर्स होते क्या हैं, ये टर्मिनोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करती है. लैज़रस ग्रुप के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि ये वो एक थ्रेट एक्टर है, ये थ्रेट ग्रुप है जो कि फाइनेंशियली मोटिवेटेड है, जो नेशन स्टेट बैक्ड है, और स्पिनाच में काफ़ी काम करता है और बैंक्स वगैरह को टारगेट करता है. तो इसके ऊपर हमारा फोकस होगा. कुछ अगर आप खबरें सुनते हैं, अगर आप सिक्योरिटी मेन है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा पिछले 2-3 साल में कुछ अटेम्प्ट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और नेबरिंग कंट्रीज़ में कुछ बैंक हाइस्ट हुई हैं, जो कि हम इसमें थोड़ा सा टच अपॉन करेंगे, कवर करेंगे, और उससे कोरिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने काम किया वो कैसे इससे रिलेट होता है. पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बैंक्स में अमूमन डिप्लॉयड होता है, और ख़ासतौर पे ATM स्विचेस के अंदर, और किस तरह से जो हमारी इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं. फिर ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे. टिपिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, और विदाउट गिविंग too much detail about any internal infrastructure or our clients, we will try to cover the typical attack vectors which these kind of attackers employ to steal money out of their pockets. और फिर हम थोड़ी सी इन डेप्थ देखेंगे डिफेंस की जो स्टोरी है हमारी. व्हेन आई से डिफेंस, इट मींस एक अटैक जो कि हमने फॉर्चुनेटली टाइम पे रोक लिया और उससे कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ. देन उसके बारे में कुछ डिटेल्स अहमद शेयर करेंगे. इंट्रूजन वेक्टर क्या था. सो अमूमन ये होता है कि जब भी कोई अटैक हो जाता है, या तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स नहीं होता, उसका प्रॉपर्ली एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, और या फिर किसी वजह से वो चीज़ें बाहर नहीं आती, वो शेयर नहीं की जाती. तो इंट्रूजन वेक्टर जो है कि अटैकर आपके इन्वायरमेंट में आए किस तरह,
और किसको टारगेट किया वो चीज़ मिस हो जाती है. सो वी वर फॉर्चुनेट कि वी वर देयर फ्रॉम डे वन. सो वी कैन probably give you some insight into some of the new things जो कि Lazarus ने रिसेंटली अपनाई हैं और बहुत से लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं. मेलवेयर हंटिंग के बारे में बात करेंगे जो वहाँ पे हमने की और किस तरह चेंजिंग टैक्टिक्स हमने फेस किए और उसकी एट्रीब्यूशन Lazarus के साथ और किस तरह से की. फिर हम बात करेंगे कुछ से कि टेक अवेज के ऊपर जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में. इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स के लिए क्या क्या टेक अवेज हो सकते हैं. हंटर्स, व्हेन आई से हंटर्स इट मींस सॉक प्रोफेशनल्स, थ्रेट हंटर्स, ब्लू टीमर्स और व्हाटएवर, इट्स जस्ट अ अम्ब्रेला टर्म दैट वी कैन यूज हियर. और जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं इंक्लूडिंग बैंक्स या हमारे जो टेक कंपनीज हैं या दूसरे इदारे हैं, उनके लिए एक जनरलाइज्ड भी हमारे पास हार्डनिंग की कुछ रिकमेंडेशन है बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंसेस. और ख़ास तौर पे पेमेंट सिस्टम को हार्डन करने के लिए कुछ जो गाइडलाइंस हैं और कुछ सजेशंस हैं जो कि हम शेयर करना चाहते हैं. Then there are some good things also. So we are not just here to talk about bad things, what happens in security business. So there were a couple of good things also that we want to share, where we think we got lucky. There are some corner cases like those as well. So this is important. अभी तक हमारे कुछ इदारों में या कुछ लोगों में ये सोच पाई जाती है कि आप अगर एंटीवायरस लगा लेंगे या फायरवॉल लगा लेंगे, कुछ बॉक्सेस लगा लेंगे या कंप्लायंस कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ, विच इज़ नॉट नाउ. हम देखते हैं डेली बेसिस पे और अब ये हमारे अपने मुल्क में हो रहा है. यहाँ पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं बहुत हाई रिस्क के और हाई स्केल के. तो हमें इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है. और जो मॉडर्न कटिंग एज डिटेक्शन एंड रिस्पांस की टेक्नोलॉजीज, टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उनको सीखना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर हमने वर्ल्ड क्लास अटैकर्स को, वर्ल्ड क्लास एपीटी ग्रुप्स को काउंटर करना है. तो उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बीइंग द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम योर लॉगिंग एंड having your team staffed with 24/7 rotational shifts ideally. फिर ब्रीच असेसमेंट है जो कि पॉइंट इन टाइम में की जाती है किसी एक इंसिडेंट के बाद, जैसे अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे. जब हमने की तो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था. और थ्रेट हंटिंग which I define personally as a continuous breach assessment that you have to do all the time. उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि अगर वक्त मिला तो हम डिस्कस करेंगे. और अटैक सिमुलेशंस जो कि इंट्रूसिव नहीं होते, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते हैं, वो भी रेडीनेस चेक करते हैं, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं. और रेड टीमिंग ऑब्वियसली जो कि किसी हद तक इंट्रूसिव होती है लेकिन कंट्रोल मैनर में की जाती है. हम वेरी क्विकली वी विल आल्सो टॉक अबाउट स्किल शॉर्टेज. पूरी दुनिया में ये हंगामा है कि सिक्योरिटी के लोग नहीं मिलते और इसमें हकीकत भी है. इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मैं समझता हूँ बड़ी एक ज़रखेज़ खेती है when it comes to technology, freelancing, bug bounty hunting, और उसके कुछ मैं स्टैट्स भी शेयर करूँगा आपके साथ. तो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान की वो मार्केट है जिसमें हम ये स्किल गैप एक राइट अगर विजन और डायरेक्शन के साथ चलते हैं with some sort of training, we can probably bridge this gap pretty quickly than other markets. लर्निंग रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, जॉब मार्केट की क्या सिचुएशन है और कुछ सर्टिफिकेशंस पे बात करेंगे. और लास्ट में कुछ ओपन सोर्स यूटिलिटीज़ हैं, टूल्स हैं, आईओसीज हैं जो कि लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर लिमिटेड वर्जन उसके हमने ओपन सोर्स किए हुए हैं. अहमद उसको लीड करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. सो ब्रेस योरसेल्फ, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ कमिंग. आई थिंक टाइम हमारे पास कम है, सो आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी क्विक. सो पहली जो टेल है, सो देयर आर गोना बी 4 स्मॉलर टेल्स एंड देन बिगर केस स्टडी. सो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज जो कि एक बहुत ही कॉमन अटैक वेक्टर है, जिसमें आपके साथ जो हम केस स्टडी शेयर करने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की एक शिपिंग कंपनी है, कंटेनर शिपिंग कंपनी, जो कि सी रूट्स को इस्तेमाल करते हुए कंटेनर शिप करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. और इनकी जो पेमेंट्स होती है वो वायर ट्रांसफ़र या जो बैंक ट्रांसफ़र है उसके थ्रू होती है, आपस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं. सो हुआ कुछ ऐसा कि हम वी वर रीच्ड के कुछ एनॉमली हुई है और ये सारा जो आपके साथ समरी हम शेयर कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वी फाउंड आउट कि देयर वर सम अटैकर्स फ्रॉम चाइना जिन्होंने एक ईमेल को कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके स्टाफ मेंबर को जो कि फाइनेंशियल टीम का पार्ट था, फाइनेंस टीम का पार्ट था, और फिशिंग अटैक के थ्रू उसको टारगेट किया. उसके बाद उसके कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ किया. They started to intercept their emails. They were basically men in the middle
and they set up some filters जो कि filter out करते थे certain emails को reroute करते थे, और इस तरह से they took their time, which is a very important thing. Most of us probably thinks that when there is an attacker in our environment, they are gonna do crazy stuff, but they don't. The financially motivated ones or the espionage threat actors, they would keep it low profile and go steadily. So उन्होंने कुछ वक्त लिया, literally move किया other machines में, other network में, और इस तरह से तमाम employees के systems पे उन्होंने अपनी access बना ली, कम से कम जो key employees थे, और बिजनेस को समझना शुरू कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक चाइना से एक ग्रुप बैठा हुआ है जिसको पाकिस्तान के बिजनेस को समझने के लिए वक्त चाहिए था। उन्होंने स्प्रेड किया, उन्होंने वेट किया, उन्होंने इंटरसेप्ट किया, ईमेल्स पढ़ी, बिजनेस पार्टनर्स को आइडेंटिफाई किया, और जिस स्केड्यूल के ऊपर इनवाइसेस आती थी, जिन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर ये कॉन्वर्सेशंस होती थी, और जिन बैंक अकाउंट्स होती थी, तो एग्जैक्टली उन्हीं को चेंज किया। और एक यूके में पार्टी थी जो कि पे करती रही 2-3 माह के लिए, कुछ पेमेंट्स थी जो पे हुई, और देयर वाज अ hefty amount stolen before they could find out the compromise. So ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और ये पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे इल्म में होना चाहिए। So second जो case study है, very quickly, this is related to a cloud infrastructure hosted on AWS. There are a bunch of different security risk when it comes to migrating from a traditional on-prem setup to your cloud environment. तो उसकी कुछ खास कंसिडरेशन है जो हमें करनी पड़ती हैं। तो एक टेक जाइंट है जीसीसी रीजन के अंदर, उन्होंने कुछ एनॉमलीज एक्सपीरियंस की अपने AWS environments के अंदर, and they reached out to us. So we suggested let's start with compromise assessment, which is, by the way, what we specialize in. I used to and am still. So we started with discovery of any backdoors, and after some preliminary analysis, we found out that there were 200 EC2 instances run हो रहे थे उन regions के अंदर जहाँ पे normally उनके कोई resources deploy नहीं होते। और अगर आप AWS से वाकिफ़ हैं तो 16P216X large is very expensive and very powerful. It comes with a lot of GPU power, which you can use to mine coins and cryptocurrency, और I think Expanse वहाँ पे माइन हो रहा था 200 इंस्टेंसेस के अंदर, और इस तरह से जो बिलिंग है उसकी स्पाइक बहुत तेज़ी से ऊपर गई। खैर हमने इन्वेस्टिगेशन की, और कुछ दिन बाद हमें इसके ऊपर कुछ वक्त लगा, और देन वी फाउंड आउट के रूट एक्सेस, जो रूट अकाउंट है, जो कि इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस टू क्रिएट अ एक्सेस की पेयर फॉर योर रूट अकाउंट ऑन AWS, बट दे वर यूजिंग इट एट दैट टाइम, और वो एम्बेडेड थी इनकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, जिसको लीक करके बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन कोड को डीऑब्फ्यूस्केट करके वहाँ से की निकाल के तो AWS तक एक्सेस किया, और वी वर लकी के तमाम रिसोर्सेज डिलीट नहीं कर दिए गए थे। लेकिन एज पार्ट ऑफ आवर इंसिडेंट प्रैक्टिस एंड रिस्पांस प्लान, वी वर वेरी वेरी कॉशियस, और उसमें हमने एक स्वीप किया तमाम इन्वायरमेंट्स में, और देखने के लिए कोई एडिशनल बैकडोर हैं या नहीं। कुछ देर के लिए हमने अटैकर्स को प्ले करने दिया, और फिर हमने कुछ वक्त लिया, जिसको हम कहते हैं कट ऑफ प्लान, वो हमने तैयार किया एक एसेंशियल विद मोस्ट एसेंशियल सर्विसेज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया कि अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हो जाता है तो सर्विस बहाल रखने के लिए हमारे पास बैकअप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो सेटअप किया, और उसके बाद कट ऑफ किया। सो इट वाज अनदर सक्सेस स्टोरी व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू. Other one, I'm gonna cut it short very quickly. It's really interesting and really embarrassing also, because ultimately we found out that there is a group working out of Saudi Arabia, basically Pakistani people living there, doing some tech jobs, and they were using their work servers to relay all of these malicious activity. उसमें होता ये था कि they started to impersonate a very well-known fashion brand from Lahore, और उसके थ्रू फैशन ग्रुप्स ज्वाइन किए, इंपर्सनेटिंग पेजेस बनाए, इंपर्सनेटिंग वेबसाइट्स का क्लोन बनाया, वहाँ पे जॉब की ऑफर्स की, सीवीज रिसीव की, उसमें उन्होंने यंग लड़कियों को लूअर किया, और इस तरह से दे स्टार्टेड टू कन्वर्स देम ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और लोग दिस आल्सो हाईलाइट्स के हमारी जो जनरल अवेयरनेस है सिक्योरिटी की आम लोगों में वो कितनी कम है। They would log into their username and password after doing some phishing attacks, credential harvesting, और उसके बाद they would even get the two-factor authentication from their users,
और इस तरह से iCloud में अमूमन iCloud को टारगेट किया जाता था, जो हमने फॉलो किया। वी सेट अप सम ट्रैकिंग, हमने इंजेक्शन वहाँ पे डाली कि जब भी कोई क्रेडेंशियल हार्वेस्ट होता था पहले हमारे पास आ रहा था और फिर वो अटैकर के पास जा रहा था। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता लगा कि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था और एक दिन में तकरीबन 60 से 70 नई लड़कियां इसका शिकार हो रही थीं और उनके iTunes डंप कर ली जाते थे, उनकी तमाम तस्वीर, वीडियोस और प्राइवेट कन्वर्सेशन उनको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और सम ऑफ दैट डाटा ended up in dark web also for selling. Okay, so I think I saved some time for you, Ahmed. Please continue from here. राइट, सो हमारा क्योंकि टारगेट है यहाँ पे कि हमने पाकिस्तानी जो हमारी यूथ है उसको टारगेट करना है, तो हम जो है वो जैसे कि इसहाक ने ज़्यादा उर्दू के ऊपर जोर दिया, उसी तरह मैं भी ज़्यादा उर्दू के ऊपर जोर दूंगा। तो इसहाक, आप एक स्लाइड बैक मूव कर सकते हैं? बैक, yeah. This is a pretty interesting extortion case, जिसमें एक security researcher जो है, he actually was posing as a security researcher. Actually he was an attacker. उसने scan run किया एक publicly exposed database के against, जो कि vulnerable थी एक CV के against, और जो scanner उसने use किया, it was actually able to exploit that vulnerability. तो आप लोगों में से जितने भी लोग इस बात से वाकिफ हों, आप लोगों में से जितने भी लोगों ने vulnerability scanners यूज किए होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि जो vulnerability scanners होते हैं, अब वो आपको एक एबिलिटी देते हैं कि अगर आप उस vulnerability को जो आपने डिटेक्ट किया है एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो वो उसको भी टेस्ट करके देते हैं, और इवन वो इस हद तक भी चले जाते हैं कि they do exploit that vulnerability. तो इसी तरह उस सिक्योरिटी रिसर्चर ने भी यही एक्टिविटी परफॉर्म की, आर्बिट्रेरी कमांड एग्जीक्यूशन हासिल की उसने डेटाबेस के अंदर, उस मशीन के ऊपर जिस मशीन के ऊपर डेटाबेस होस्ट हो रही थी, और वहां पे उसने अपना एक बैकडोर इम्प्लांट किया और वहां डेटाबेस के अंदर एक एंट्री की जहां पे उसने रैंसम नोट डाला हुआ था, विच सेड के डीप वेब के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर इस डेटाबेस का एक डंप जो है वो उसको मिला है, और उस डेटाबेस डंप को डिलीट करने की एबिलिटी उस बंदे के पास है, और he demanded some money in return for deleting that database dump. Obviously that was not going to happen. हमने रैंसम देना था, और उस सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक्चुअली डंप एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कुछ भी नहीं करना था, सो रैंसम तो उसको पे नहीं करना था। इवन इफ वी हैड पेड रैंसम, जो बैकडोर उसने इंस्टॉल किया था vulnerability एक्सप्लॉइट करने के बाद, it would still have been there. Next one please. Right. Yeah. So हमारा आज का सबसे जो मेन फोकस है, that is on Operation Skype Job. ऑपरेशन स्काइप जॉब एक एपीटी एक्चुअली एक एपीटी अटैक है जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट एक्चुअली टारगेटेड वन ऑफ आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। इस अटैक का जो इंट्रूजन वेक्टर था वो एक सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट थी, जिसके अंदर जो अटैकर था, he was posing as COO of another financial institution in the Caribbean region, or he introduced himself with the name Justin Young, which is actually a person of that company, actually the COO of that company. So हुआ कुछ यूं कि उसने जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया, वहां पे उसने एक फेक जॉब एप्लीकेशन की बाइनरी डिप्लॉय करके डेवलप करके वहां उस टारगेट को सेंड की और उसको ल्यूर इन किया उस बाइनरी को एग्जीक्यूट करने में। और पहले उसको लिंक्डइन के ऊपर जब वो रिक्वेस्ट भेजी, वहां पे उसके साथ डिस्कशंस की, फिर उसको बाद स्काइप पे आ गया, स्काइप पे आके उसने अपना मैलवेयर एम्बेडेड जो बाइनरी थी वो शेयर की, और फिर उसके बाद जब उसको विक्टिम ने बताया कि वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा स्काइप की, कोई उसकी पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, और मे बी देयर वाज सम काइंड ऑफ इशू दैट द विक्टिम थॉट एट दैट मोमेंट, so he asked the attacker to send the binary
through some other way. और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अटैकर जो है उसने फायरफॉक्स सेंड की एक सर्विस है, वहां से एनक्रिप्टेड फाइल शेयर की वेरी इजीली। विक्टिम ने फाइल डाउनलोड कर ली क्योंकि वो एनक्रिप्टेड थी, इट बाईपास द सिक्योरिटी कंट्रोल्स, और वहां से उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, बाइनरी को एग्जीक्यूट करने के बाद, जो बाइनरी थी, इट अनपैक्ड इटसेल्फ, contacted the C2 and then downloaded the malware, the stage 2 malware. So the jo stage 2 malware tha, that was actually what we found was related to and quite similar to Power Atankba. That is actually a tool that is used by Lazarus Group and its affiliates. Right. So जैसे ही उसने stage 2 payload जो है उसको डाउनलोड किया, वहां से उसने की लॉगर जो है वो रिफ्लेक्टिव DLL इंजेक्शन के थ्रू एक्सप्लोरर की बाइनरी के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड मूविंग थ्रू द नेटवर्क। और हम बहुत खुशकिस्मत थे इस मामले में कि हमने उसको टाइम के ऊपर जो कंटेन कर लिया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो भी इस अटैक के दौरान IOCs थे जो हमने इसमें आइडेंटिफाई किए, वो स्ट्राइकिंगली सिमिलर थे चिलियन रेड बैंक इंट्रूजन जो 2018 के अंदर हुई थी उससे। नेक्स्ट प्लीज। राइट। सो ये जो केस स्टडी है ये आपको प्रॉपरली इसको गो थ्रू करूंगा एक दफा, आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। जो APT ग्रुप्स होते हैं, what are those? APT groups are some highly technical sophisticated groups. They are also called persistent threats because they do not back down. ठीक है, आप उनको जितना भी रोकने की कोशिश करोगे, they would find some way to attack you. ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि टिपिकली जो एडवांस persistent threats होती हैं, they are nation sponsored, so they have a hell of a lot of resources. So next slide. Right. So जो APT group हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, that is actually Lazarus Group that is operated under the military cyber warfare division of North Korea. और उसके कई सब ग्रुप्स हैं जिसमें APT 38 कंसिडर किया जाता है, ब्लू नोरॉफ है, एंडेरियल है। ये ग्रुप्स कंसिडर किए जाते हैं Lazarus Group के सब ग्रुप्स। और नॉर्थ कोरिया is a state that actually backs this group, sponsors this group in conducting its cyber operations. और जो मोटिव्स हैं Lazarus Group के, वो उसमें इंक्लूडेड है फाइनेंशियल हाइस्ट, एस्पियोनाज, और इसी तरह डिफरेंट बैंक्स को टारगेट करना और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टील करके और उसके बेस के ऊपर रैंसमवेयर डिमांड करना। सो हमारी जो पास्ट जो हमारी हिस्ट्री है बैंक हाइस्ट की साउथ एशियन रीजन के अंदर, that is quite concerning. 2018 के अंदर there was a massive bank heist in India that was in Cosmos Bank, जिसमें nearly 13.5 million dollar was exfilled from the bank. और उसके बाद allegedly there is another bank hack that occurred in Pakistan in late 2018 that allegedly it is said that $6 million of cash was most probably expelled from the bank. So इन दो occurrences के बाद जो फेडरल बॉडीज थी साउथ एशियन रीजन के अंदर, दे वोक अप। ये उनके लिए बहुत एक कंसर्न का बाइस था। उन्होंने कानून साजी की इसके ऊपर बहुत ज्यादा, और उसके बाद उन्होंने फॉरेंसिक असेसमेंट्स का जो है वो कंपल्सरी डिक्लेयर कर दिया। सो टिपिकल पेमेंट सिस्टम अटैक को अगर हम ऑब्जर्व करें तो होता कुछ नहीं है कि एडवर्सरी जो है वो एक स्पीयर फिशिंग ईमेल सेंड करती है, और जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये कि आइदर जो एडवर्सरी है वो टारगेट करती है पेमेंट स्विच को, या फिर वो टारगेट करती है स्विफ्ट टर्मिनल को। इन केस अगर वो पेमेंट स्विच को टारगेट करती है तो वो पेमेंट नेटवर्क की तरफ से जाती है, और अगर स्विफ्ट टर्मिनल को टारगेट करती है तो स्विफ्ट नेटवर्क की तरफ से जाती है। इन केस आप
कोई ऐसा अटैक ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके अंदर स्विफ्ट को टारगेट किया जा रहा है, तो they would make a wire transfer and go towards cashing out the money, or otherwise if that is a payment switch, तो पेमेंट स्विच के थ्रू वो एटीएम के थ्रू म्यूल्स सेंड करके और वहां से कैश आउट जो है वो कर लेते हैं. So that is how typical payment system attacks are conducted. Next one, please. Right, right. So जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि it all started from a LinkedIn connection. LinkedIn के ऊपर जो है वो जो एडवर्सरी है उसने कांटेक्ट किया विक्टिम को, और वहां से उसने LinkedIn के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद उसको ईमेल भी सेंड की, उसको स्काइप के ऊपर कांटेक्ट किया, और he was posing as COO of GP Cantigua. So actual name is GP Cantigua. And the actual website is gpcantigua.com, जबकि जो imposter था उसकी वेबसाइट थी GP Cantigua. So there is this I missing, right? और अगर आप उसका who is lookup करें तो आपको वहां पे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि these are not the same not the same domains. अगर हम आगे चलें तो लिंक्डइन के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद उसने जो है वो स्काइप के ऊपर उसको एक रिक्वेस्ट सेंड की, और स्काइप के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वहां पे उसने उसको एक कन्वर्सेशन के अंदर एंगेज किया, और वहां पे उसको एक लुक्रेटिव जॉब ऑफर की, और जॉब ऑफर करने के बाद उसको एक ऐसा आर्ली पेमेंट रेट ऑफर किया जो वो रिजेक्ट नहीं कर सका, और वहां से उसने एक मैलिशियस जो है वो बाइनरी शेयर की. मैलिशियस बाइनरी शेयर करने का उसने जो रीजन दिया वो ये था कि उसने कहा कि हमारा अपना एक प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, एप्लीकेशन फिल करने का, तो आप जो है वो इस बाइनरी को एग्जीक्यूट करो, वो फॉर्म एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट जॉब. सो विक्टिम ट्राइड टू डू दैट. ठीक है. और उसके बाद कुछ इस तरह हुआ कि जब उसने बाइनरी एग्जीक्यूट करने की अटेम्प्ट की, बाइनरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, जो एंटीवायरस था उसने उसको ब्लॉक कर दिया. सो विक्टिम ने पैनिक सिचुएशन के अंदर कि वो जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा, वहां से उसने कांटेक्ट किया वापस अटैकर को, और उसको बताया कि मैं इसको कर नहीं पा रहा एग्जीक्यूट. और अटैकर ने उसको प्रॉपरली गाइड किया कि आप कैसे एंटीवायरस को बाईपास कर सकते हो, कैसे आप जो है वो अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसीज को बाईपास कर सकते हो. उसने प्रॉपरली उसको गाइड किया बाइनरी एग्जीक्यूशन की तरफ. एज सून एज बाइनरी एग्जीक्यूट हो गई और उसके बाद अटैकर ने दोबारा उस बंदे को कभी कांटेक्ट नहीं किया. वो उसको मैसेजेस भी करता रहा पर ही नेवर रिप्लाइड बैक. जैसे ही बाइनरी एग्जीक्यूट हुई तो हमें ये पता लगता है कि बाइनरी वाज एक्चुअली अ डीकॉय एंड वाज नॉट एन एक्चुअल फॉर्म. जो मेलवेयर हमने इस कैंपेन के अंदर आइडेंटिफाई किए, दोज वर की लॉगर जो है वो रजिस्ट्री चेंजेस परफॉर्म करता है परसिस्टेंस गेन करने के लिए, और फिर यही वो की लॉगर है जो explorer.exe की मेमोरी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. explorer.exe को चूज करने का मकसद ये है कि explorer is always running on the machine. There is very less or maybe very slight chance कि explorer.exe आपकी जो विक्टिम्स हैं उनकी मशीन के ऊपर ना रन कर रही हो. सो रिफ्लेक्टिव पी इंजेक्शन के थ्रू की लॉगर इंजेक्ट किया गया क्रेडेंशियल स्टीलिंग के लिए. और देयर इज अनदर देयर इज दिस पावरशेल स्क्रिप्ट जो कमांड एंड कंट्रोल से कांटेक्ट करती है, और जो कमांड एंड कंट्रोल एड्रेस है दैट एग्जैक्टली मैच विद द चिलियन रेड बैंक इंट्रूजन. और वहां से फिर बाइनरी डाउनलोड करती है, और बाइनरी डाउनलोड करने के बाद अनपैक करती है उसको और फिर इंजेक्शन करती है explorer.exe के अंदर. और इसी तरह एक सिमिलर पावरशेल स्क्रिप्ट है जो परसिस्टेंस क्रिएट करती है, और उसका एक sdel फंक्शन है जो बाइनरी की जो डिस्क के ऊपर एग्जिस्टेंस है उसको टोटली रिमूव कर देता है. सिक्योर डिलीट मेथड के थ्रू उसको टोटली वॉश ऑफ कर देता है वहां से, और फिर बाइनरी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रही होती है. सो दिस इज हाउ दे इवेड डिटेक्शन एंड दिस इज हाउ दे इवेड डिस्क फोरेंसिक्स. राइट, मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम देखें तो जो चौथा हमने malware डिटेक्ट किया that was also a PowerShell script. Very interestingly that was also a PowerShell script. और उसका काम इस तरह है कि explorer.exe का जो प्रोसेस आईडी है उसको वो पुल आउट करता था, और उस प्रोसेस आईडी को यूज करते हुए जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है की लॉगर, उस की लॉगर को इंजेक्ट करता था. So that is how it actually happened. और there is this
malware that is dropped when the application pdf.exe is executed. वहां पे कुछ इस तरह होता है कि ये जो लास्ट हम PowerShell script देख रहे हैं, that is actually Power Atangba, and Power Atangba is the network recon tool of Lazarus Group itself. पावर अतंकबा को डाउनलोड करने के बाद पावर अतंकबा को इन मेमोरी जो है वो उसको डिक्रिप्ट करता है, और डिक्रिप्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और डिस्क के ऊपर से उसके तमाम जो है वो एविडेंसेस वहां से वॉश ऑफ कर देता है. मूविंग अहेड, अगर हम देखें जो सिक्योर डिलीट का मैंने आपको फंक्शन जो है वो अभी एक्सप्लेन किया है, जिस स्क्रिप्ट के अंदर वो है एग्जैक्टली हम वो स्क्रिप्ट इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. और अगर आप उसको देखें पार्ट 1 के अंदर, पॉइंट 1 के अंदर वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, दैट इज डिलीट ओरिजिनल फाइल आफ्टर एग्जीक्यूशन. सो पहला स्टेप जो वो परफॉर्म करता है वो ये है कि डिस्क के ऊपर से अपना तमाम नामो निशान मिटा दे, और उसके बाद फिर बाइनरीज ड्रॉप करने के लिए वहां पे डायरेक्टरीज क्रिएट करता है, और डायरेक्टरीज क्रिएट करने के बाद एक सर्विस क्रिएट करता है, और उसको सेट कर देता है कि जब भी मशीन बूट हो तो ये सर्विस जो है वो सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद जो है वो एग्जिट हो जाता है. अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो की लॉगर हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम उसको आइडा के अंदर ओपन करें, या लेट से अगर हम उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि जो एपीआई कॉल्स उसने इंपोर्ट की हैं उस की लॉगर ने, उस बाइनरी ने जिसको हमने की लॉगर आइडेंटिफाई किया है, वो क्लियरली ये शो कर रही हैं कि इनपुट कैप्चर की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही होगी इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर. और एग्जैक्टली अगर इसी हम देखें तो उस की लॉगर का नाम भी हमें उसी हेक्स स्ट्रिंग्स के अंदर नजर आ जाता है. सो जब हमने ये अटैक डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद उसको एक खास सेगमेंट के अंदर जो है वो कंटेन कर लिया, सिर्फ ये ऑब्जर्व करने के लिए कि ये एडवर्सरी जो है वो प्रोपोगेट किस तरह कर रही है या इसके टैक्टिक्स किस तरह के हैं, तो वहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेवलेशन हुई. वो ये थी कि जैसे ही उसको कंटेन करना शुरू किया गया उस सेगमेंट के अंदर, एडवर्सरी को उस वक्त ये अंदाजा हो गया कि कंटेनमेंट जो है वो इन प्रोग्रेस है, और वहां से उसने पहले वो WMI के थ्रू जो है वो प्रोपोगेट कर रहा था इन द नेटवर्क, और एक सडन चेंज उसने किया, सडन शिफ्ट किया अपने टैक्टिक्स को, और प्रोपगेशन उसने बिल्कुल टोटली चेंज कर दी एडमिन शेयर्स के थ्रू. सो पहले WMI के थ्रू वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो उसको इंश्योर कर रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कंटेनमेंट का उसको आइडिया हुआ कि कंटेनमेंट स्टार्ट हो चुकी है, वहां से उसने एडमिन शेयर्स के थ्रू मूव करना शुरू कर दिया. सो दिस इज एक्चुअली टू एवेड डिटेक्शन. अटैकर्स इस तरह की एक्टिविटी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो बहुत से केसेस के अंदर उनको उनकी एक्टिविटी पता लग चुकी होगी, और वो उस एक्टिविटी को ही कंटेन कर रहे होंगे. सो वो सडन चेंज लेके आते हैं अपने टैक्टिक्स के अंदर, ताकि जिस पॉइंट को इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स फोकस कर रहे हैं उसको इवेड करते हुए वो दोबारा से अपनी प्रोपोगेशन जो है उसको मेंटेन रखें. और अगर हम इन मैलवेयर एजेंट्स को देखें, तो these are all the malware versions, malware and their versions used by Lazarus and its subgroups. So what went in our favor? ये अभी तक तो हमने सारी वो चीज डिस्कस कर ली जो बहुत ही एक अजीब सा ड्रोना सा सिनेरियो था, जिसके अंदर एडवर्सरी जो है वो प्रोपोगेट कर रही है. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो हुआ, वो ये कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेव्ड अस. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड VPN सेव्ड अस. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही वो वजह थी जिसकी वजह से एडवर्सरी जो है वो क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट कर रही थी इन द नेटवर्क, वो MFA की वजह से उसको हिंड्रेंस का सामना करना पड़ा और वो सर्वर फार्म तक नहीं जा सकी. सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज व्हाट वी ऑल नीड टू प्रेफर. सो इस अटैक की डायसेक्शन करने के बाद, इस अटैक को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद, अब हमारा जो गोल था वो ये था कि आइडेंटिफाई किया जाए कि इस अटैक के जो है वो TTPs क्या हैं, ऐसे आखिर ऐसी क्या एक्टिविटी है जिसको देख के ये पता लगाया जा सकता है कि who targeted us. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप रेड टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को देखें जो इस एडवर्सरी ने एम्प्लॉय किए, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि जो आइडेंटिफाइड TTPs हैं इस अटैक के, दे
mostly match with the Lazarus group. और उसके अलावा क्योंकि हमने उसको timely contain कर दिया था, so there was no exfiltration or there was no impact included in this attack. So हमें इस पूरे अटैक से इस पूरी अटैक चेन को देखने से हमें क्या पता लगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें टैक्टिकल इंटेल इस अटैक को देख के हमें मालूम हुई है वो ये कि Lazarus और उसके एफिलिएट्स ने एक एबिलिटी हासिल कर ली है कि वो या तो किसी ना किसी तरीके से अपने ऑपरेटिव्स को ट्रेन कर रहे हैं या फिर वो जिन कंट्रीज के अंदर अपने टारगेट्स सेलेक्ट करते हैं उन कंट्रीज के अंदर किसी को हायर कर लेते हैं और वहां से फेक जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर एंड there is this another point that is very important and actually a tactical intel for us, and that is कि Lazarus और उसके affiliates that includes APT38, they have shifted from targeting banks to ATM switches. Right, so this is a very important revelation, right? और यहाँ पे अगर हम ये भी दोबारा mention कर दें कि जो tactics थे और जो malware थे वो strikingly similar थे Red Bank की intrusion से, तो हमें ये भी idea होगा कि बिल्कुल जिस time के ऊपर Red Bank को target किया जा रहा था उसी time पे different countries के अंदर similar institutions को target किया जा रहा था. और अगर हम observe करें malware को तो हमें ये identification होती है इस फैक्ट की कि Lazarus ने जो है वो एक एबिलिटी हासिल कर ली है कि उसने अपने तमाम जो malware हैं उनको PowerShell के अंदर पोर्ट कर लिए. Right, so this is a very interesting case study that enables us to learn a lot of stuff. Ishaq, please. Awesome. Thank you, Ahmed. Very well covered. So very quickly, there are some learning points that we want to share with businesses and other stakeholders. So please try to understand कि कोई भी compliance या कोई भी डब्बा, कोई भी security box हमें breaches से immune नहीं कर सकता. I think इसकी तो अब हमें ज़रूरत नहीं है बार-बार कहने की. अब कहाँ पे फोकस करना चाहिए अगर हम इस पे रिलाई नहीं कर रहे? अपनी ट्राई करें कि इंसिडेंट रेडीनेस स्टेट में आए. आपकी अगर इंसिडेंट रेडीनेस स्टेट मैच्योर नहीं भी है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. देयर आर फ्रेमवर्क्स अवेलेबल, यू कैन कंसल्ट विद समबडी, बट स्टार्ट डेवलपिंग योर इन्वेंटरीज. यू शुड नो योर एनवायरनमेंट बेटर देन द अटैकर्स, बट यूजुअली इट्स द अदर वे अराउंड. लॉगिंग और मॉनिटरिंग इन प्लेस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. मिनिमम स्टार्ट करें, लेकिन ऑडिट लॉग से ज़रूर स्टार्ट करें. अगर आप 24/7 मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, कम से कम 9-5 स्टार्ट करें. स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाइड हों. इंसिडेंट रिस्पांस के कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स या जो आपके इंसिडेंट रिस्पांस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ इन प्लेस अमूमन होते हैं. बाहर ख़ास तौर पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस होते हैं जो कि हमें भी प्रैक्टिस करने चाहिए. और जब रैंसमवेयर अटैक की बात आती है तो अपने बैकअप्स पे रिलाई करें. इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है. जब आप स्केल में बात करते हैं और इंटरप्राइज विंडोज़ 2008 सिस्टम्स की बात करते हैं. एम्ब्रेसिंग आउटसोर्सिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन एक ही हेजिटेशन है हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर. ये मेरे ख्याल में अब चली जानी चाहिए टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ जो स्किल शॉर्टेज है. और इसमें अगर लेजिस्लेशन वाली साइड पे या लीगल बॉडीज़ को भी सोचना चाहिए इस पे ताकि हम क्विकली स्किल गैप को कवर कर सकें. Okay, so timely engage with your customers, partners. ये बहुत important point है. अगर कोई एक इंस्टीट्यूट compromise हो जाता है, breach होता है और वो अपने IOCs शेयर नहीं करता या अपने उसके साथ क्या गुजरी वो नहीं शेयर करता, timely अपने customers को upgrade नहीं कर रहा, so they are basically putting everybody else in the same risk of getting compromised. So collaboration needs to be improved. This is one thing which I see there's a room for improvement in Pakistan, at least. For incident response teams, जो इनिशियल अप्रोच है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आउटकम पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. वेरी क्विकली गोइंग थ्रू दिस. अगर पॉसिबल हो तो एडवर्सरी को कंटेन करें एक नॉन क्रिटिकल सेगमेंट में, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करें और उसको कट ऑफ करने से पहले, और मेक श्योर करें कि उसका कोई बैकडोर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ. उसकी कंप्लीट टीटीपीज एक्सट्रैक्ट कर ली हैं आपने, तमाम मेलवेयर आइडेंटिफाई कर ली हैं, और तब आप उसकी कट ऑफ की तरफ जाएँ. इंसिडेंट हैंडलर नीड्स टू सेट क्लियर इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव्स, और उसको चाहिए कि स्प्लिट करे टास्क एसएमईज में और अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म रखे. Otherwise incident response can very quickly turn into a mess.
और तैयार रहें कि लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको डील करना पड़ेगा, आपके एजेंट वहाँ नहीं चलेंगे, आपके प्रेफर्ड टूल्स नहीं चलेंगे, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड इन्वायरमेंट नहीं होंगे, और या फिर आपको एक्सेस नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ों को पहले से फोर्सी कर रखें। पार्टनर करें क्लाइंट की आईटी और सिक्योरिटी टीम के साथ। दे आर सपोज टू बी ऑन योर साइड, इफ नॉट दे आर गोना मेक योर जॉब इम्पॉसिबल। ये ज़हन में रखिएगा, you need their support. So do not mess with those people. Ensure करें कि chain of custody जो है वो हमारी maintain रहे, especially if there is some legal matter involved, जहाँ पे आपको as an expert witness पेश होना पड़ सकता है कोर्ट में। तो पहले images लें और फिर analyze करें। अमूमन यहाँ पे गन शॉट वर्सेस लेज़र अप्रोच होती है इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर। ये डिपेंड करता है आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है जो कोर्ट में चाहिए होगा या नहीं। और अपने आर्टिफैक्ट्स को हमेशा एन्क्रिप्टेड रखें। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस क्लोज करनी पड़ती हैं ओपन क्वेश्चंस के साथ। इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू हैव मेट योर मेन ऑब्जेक्टिव्स। आप हमेशा के लिए ओपन नहीं रख सकते इन्वेस्टिगेशन को, आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं कई जगह पे। पोस्टमार्टम एनालिसिस लाजमी करें। देयर इज़ 5 why मॉडल जो कि फॉलो करना चाहिए। इट्स वेरी इफेक्टिव, वी हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ। इट्स वेरी हेल्पफुल and you should know your adversary, and you should do your homework. This is really important. This is just one sample that I'm showing you before going to one incident response. We used to do all of this MITRE stage mapping on our own, doing some research कि हमारा कौन कौन से टूल्स यूज़ करता है, उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेजेस क्या हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर में टारगेट करता है, कौन सी लैंग्वेजेस में उन्होंने अपने टूल्स डेवलप किए हुए हैं। और इसके अलावा जो उनकी पास्ट कैंपेन्स हैं उनकी इंसिडेंट रिस्पांस रिपोर्ट लाजमी पड़ी है। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम जब इसकी बात करें तो ये हमारी सॉक टीम है, हमारी डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग की टीम है। इसमें there needs to be a role. It can be one man role in a SOC team, which I recommend, जो कि थ्रेट इंटेल गाय और थ्रेट इंटेल टीम हो, जो कि ये नए थ्रेट इंटेल के ऊपर टैब रखे और जितनी भी हमारे पास ब्रीचेस हो रही हैं, जितनी भी नई कैंपेन्स हो रही हैं, उससे SOC टीम को अपडेट करता रहे। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। सो वेरी क्विकली, रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव हंटिंग। आई थिंक हमारा टाइम बस ख़त्म होने वाला है। रिएक्टिव माइंडसेट ये है कि हम सॉक में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक कोई हमारा रूल ट्रिगर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर रूल ट्रिगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे अटैक नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि आपके रूल अच्छे नहीं हैं। सो हमेशा अज्यूम ब्रीच के माइंडसेट से काम करें जब आप शिफ्ट पे बैठें, जब भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्रीच इज़ देयर, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। और वो कैसे फाइंड करेंगे? देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स आप जो थ्रेट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो पास्ट कैंपेन्स हैं उनके आईओसीज निकालें, उसको बल्क में स्वीप करें अपने एनवायरनमेंट में। माइटर की जो कवरेज है DTPs की, ये एक बहुत अच्छा इंडेक्स है हमारे पास, ये आपकी मैच्योरिटी गेज करने के भी काम आएगा। उसके ऊपर डिटेक्शन बिल्ड करते रहें। OS टेलीमेट्री के साथ खेल लें, OS क्वेरी है, SSMON है, अगर EDR है तो और भी अच्छी बात है। और या अगर नई CVs आ रही हैं तो उसके अगेंस्ट अपने एनवायरनमेंट को चेक करें, कहीं आपके पास तो एक्सप्लॉइट नहीं हो रही। ADC चैनल्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं। दीज आर बेसिकली alternative delivery channels, anything in a bank which is not related to your main core banking system. अगर आप चेक फॉर एग्जांपल ले रहे हैं या जाके डायरेक्टली डिपॉजिट और विड्रॉ करवा रहे हैं तो वो कन्वेंशनल बैंकिंग है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATMs, ये तमाम आपके ADC चैनल्स में आ जाते हैं। तो ट्राई टू आइसोलेट देम। अभी हमने एक केस स्टडी में देखा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है और सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मिक्स नहीं करें अपने नॉन क्रिटिकल सेगमेंट के साथ, इवन विद इन योर डेटा सेंटर्स। योर सर्वर फॉर्म शुड नॉट हैव ए कैंडी बार डिज़ाइन, जहाँ पे आपकी जो आउटर शेल है वो तो बहुत प्रोटेक्टेड है, आपने 6 किस्म की फायरवॉल्स लगाई हुई हैं, बट एक बार अगर अंदर आ जाएँ तो कोलिजन डोमेन आपकी एक्सपोज कर देती है तमाम सर्वर्स को। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। लॉजिकल सेगमेंट्स क्रिएट करें और इसके अलावा इनक्रिप्ट डेटा ट्रांजिट में करें, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमेशा जब एक अटैकर खास तौर पे PT आके नेटवर्क में बैठता है, दे स्टार्ट स्निफिंग एंड दे स्टार्ट टू recon the hell out of your infrastructure. So this is very important. Implement defense in depth strategies. ये स्लाइड डेक आपसे शेयर करें, इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप उसको जब पढ़ें तो इसमें से चीज़ें निकल आएँ। अगर और क्वेश्चंस हैं तो वो आप डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हैं हमारे से। So I'm gonna just wrap it up now. So स्किल शॉर्टेज का मतलब ये नहीं है टैलेंट शॉर्टेज है। हमेशा ये न्यूज़ सुनते हैं। मैं जैसे आपको एक कुछ क्विक स्टैट्स देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में अराउंड 50 स्नैक रेड टीम मेंबर्स हैं, साइनैक।
जो कि एक rather difficult bug bounty platform है. और इसके अलावा अगर हम Bugcrowd को देखें या HackerOne को देखें तो 1000 से ज़्यादा एक्टिव हैकर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं. 20 of them are in 100 top 100. ये एक quick research है. This is not 100% authentic, but this is the best I could get. 60 offensive security certified professionals हैं. हमारे पास कुछ ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं कि जैसे अमीर हमजा एक 100,000 के एक साल में उनकी इनकम है. तो ये सब कहाँ से आ रहा है? They did not get trained. अगर आप इनकी एज ग्रुप देखेंगे तो they are quite young. So they get inspired by other people. If we can channelize this raw talent, I don't see a reason why we cannot bring more foreign exchange to Pakistan, just like we are doing great on some other platform. This is one statistic from Payoneer, where we stand at 4th position globally in terms of freelancing. So here we are, some certifications, some trainings. There are some very informative blogs when it comes to DFIR, or some labs and CTF to get you started. Details on Discord. Then there are some, so there are 2 GitHub repos which I've mentioned that we have published some IOCs in the past. Evrix also contributes to different NIST platforms, OTX और जो incident response के अंदर कुछ IOCs हम समझते हैं कि लोगों के पास जाने चाहिए, वो वहाँ पे शेयर होते हैं. There are some handy DFIR utilities जो कि वहाँ पे uploaded हैं. Make use of them, play with them. If you want to extend them, you are more than welcome to collaborate. Ahmed will coordinate with you on that. Thank you very much. Thank you, Sir, and thank you, Ahmed.